everyone, welcome back to my YouTube channel, The Friendship. In today's video, we are gonna begin with our chapter number 2 of Oshante 3. So as you all know, हमने जो chapter number 1 था, which was about the letter of Lettre de Valerie, I think this was the name of the chapter. So we completed that chapter. Now it's turn to start the chapter number 2. Chapter number 2 का हमारा जो title है, it is Juillet anniversaire Paul. सो जुई एनिवर्सरी मीन्स हैप्पी बर्थडे. इसका मतलब एनिवर्सरी नहीं होता, एनिवर्सरी का फ्रेंच में मीनिंग होता है बर्थडे. ठीक है. सो इट्स द बर्थडे ऑफ पॉल. अब देखते हैं सेलिब्रेशन होगा. एंड यस, वी आर इन्वाइटेड टू पॉल्स बर्थडे. इवन हमें बताया जाता है क्या क्या होता है पॉल के बर्थडे पर. सो लेट्स गेट टू द पार्टी. ओके, सो let's just read the text first. It says, Dama se l'anniversaire de Paul means tomorrow it is the birthday of Paul. C'est la récré et il invite ses amis chez lui pour fêter son anniversaire. Means it is the récré. Récré means recreation. Recreations are some activities that you do when you are not working at anything. ठीक है. Il invite ses amis means and he invites his friends at his place for celebrating his birthday. Paul he says to Valerie, Paul he says to his friends, Salut, c'est mon anniversaire demain. Je veux inviter mes amis pour la fête. Salut means hello, it's my birthday tomorrow. I want to invite my friends for the party. Super. À quelle heure est-ce que la fête commence? Means superb. At what time does the party begins? Valerie asks this question to Paul. Paul he replies, La fête commence à 6 heures du soir. Means the party begins at 6 o'clock of evening. Then he says, est-ce qu'il y a des activités also? Aussi means, are there some activities also? Paul, he says, oui, il y a beaucoup d'activités. Means, yes, there are a lot of activities. Nous pouvons chanter means we can dance. Sorry, we can sing. Danser means dance. Et jouer aussi. And play also. Soyez à l'heure, s'il vous plaît means be on time. Soyez à l'heure means be on time. S'il vous plaît means please. Be on time, please. Okay. अब चलो, बर्थडे पार्टी का दिन आ चुका है एंड इट इज़ le jour de l'anniversaire means the day of the birthday. Paul et son père décorent la maison avec des guirlandes et des ballons. Means Paul and his father decorates the house with garlands. Garlands are जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे garlands. Garlands उनको बोलते हैं. Et des ballons means and some balloons. Tous les amis viennent means all the friends are coming. La mère de Paul prépare un gâteau au chocolat pour tout means the mother of Paul prepares chocolate cake for all. Il y a beaucoup d'autres plats aussi means there are a lot of dishes also, delicious dishes also. There are a lot of other delicious dishes. ठीक है, delicious dishes. Paul coupe le gâteau means Paul cuts the cake. Il est très content means he's very happy. Son père met ensuite de la musique. Puis Paul et ses amis commencent à danser means the song means his father put the music. Then afterwards Paul's father put the music. Then Paul and his friends begins to dance. ठीक है. Ils jouent aux jeux vidéo means they play video games et ils regardent des dessins animés means and they watch cartoons. Dessins animés means cartoons. Quelle surprise means what a surprise. Papa donne un vélo à Paul comme cadeau d'anniversaire means Papa gives a cycle to Paul as his birthday gift. Paul montre son vélo à tous ses amis means Paul shows his cycle to all his friends. Okay. Le soir, il reçoit beaucoup de cadeaux. Means on evening, he receives a lot of gifts. Vraiment, c'est un jour fantastique pour Paul. Means really, it is a really fantastic day for Paul. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द पोल्स बर्थडे. चलो, पोल का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया. अब हमारी बर्थडे सेलिब्रेट करने की बारी है. चलो जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो 5 मिनट के अंदर अंदर. मैं नहीं करवाने वाली. ठीक है, जल्दी जल्दी ये पूरा का पूरा कर लो. एंड यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट
पार्ट आता है राइटिंग का. यू हैव टू राइट 5 सेंटेंस एंड यू हैव टू इनवाइट योर फ्रेंड टू योर बर्थडेज नाउ. ठीक है. यूज़ एनीथिंग, यूज़ योर ब्राउज़र, यूज़ एनी डिक्शनरी टू check out the vocabulary, and the thing is that you have to write what you have written in the comment section as well please, ताकि मैं भी देखूं कि हाँ आपको कितना समझ में आया है. ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑन दी ग्रामर टॉपिक्स. ग्रामर टॉपिक्स में हमारे पास है les adjective demonstratives, मीन्स द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमारे बेसिकली होते हैं दिस दैट दीज दोज, जो होते हैं ना, दैट दीज एंड दोज. अब दिस दैट तो हमारा होता है सिंगुलर के लिए, दीज दोज होता है हमारा प्लूरल के लिए. ठीक है. चलो अब एक बार हम फ्रेंच के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनको समझ लेते हैं. ओके, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है. सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से हम बिगिन करते हैं. अब आप लोगों को पता है इंग्लिश के अंदर जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं दोज आर दिस, दैट, दीज और दोज. बट फ्रेंच के अंदर जो ये डिपेंड करते हैं वो उसके जेंडर पर डिपेंड करते हैं. अब देखो, जो हमारा दिस दैट दीज दोज ये वाला तो हमारा होगा ऑन द सिंगुलर. ठीक है. ये होगा सिंगुलर पर एंड ये वाला होगा हमारा प्लूरल पर. बट फ्रेंच के अंदर ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड इन फ्रेंच, दे डिपेंड ऑन द जेंडर ऑफ द नाउन. अगर जेंडर मैस्कुलिन है तो ये लगेगा, फेमिनिन है तो वो लगेगा, प्लूरल है तो ये लगेगा, वोवल से बिगिन करता है तो ये लगेगा. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं इफ द नाउन इज मैस्कुलिन. अगर जो हमारा नाउन है वो मैस्कुलिन है तो क्या लगेगा? अगर फेमिनिन है तो क्या लगेगा? वॉवल से बिगिन करता है वो नाउन तो क्या लगेगा? एंड प्लूरल है वो नाउन तो क्या लगेगा? ठीक है. सो अगर हमारा नाउन जो है अगर वो है हमारा मैस्कुलिन तब हमारा लगेगा सी ई. ठीक है. अगर फेमिनिन है तब हमारा लगेगा सेथ. ठीक है. अगर हमारा नाउन वॉवल से बिगिन करता है तब हमारा लगेगा सी ई टी. ठीक है. प्लूरल से करता है तब हमारा लगेगा सी ई एस. ठीक है. अब सेथ सेथ जो वॉवल के लिए हैं उनका हमारा मीनिंग होता है दिस और दैट. ठीक है. क्योंकि ये सिंगुलर के लिए यूज होंगे, राइट. एंड ये हमारा प्लूरल वाला जो है इसका मीनिंग होता है इंग्लिश के अंदर दीज और दोस्त. ठीक है. अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस चीज़ के. सो यस, हाँ, अगर मैं कहूँ हाउस, मेजो अगर मैं कहूँ हाउस, सिंपली मैंने लिख दिया मेजो इज फेमिनिन. ठीक है. अब मैं कहूँ दिस हाउस, सो मेजो फेमिनिन है तो हमारा फेमिनिन में क्या लगेगा? सेट लगेगा. सो मैंने यहाँ पर लगा दिया सेट एंड दिस बिकेम दिस हाउस. ठीक है. एक और एग्जाम्पल मैं लूँ. अगर मैं कहूँ ओरलोज मीन्स वॉल की जो क्लॉक होती है उसको हम ओरलोज बोलते हैं. अगर मैं कहूँ दिस क्लॉक तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी सी ई टी, तो ये हमारा बन जाएगा दिस क्लॉक. ठीक है. वैसे ही अगर मैं कहूँ दिस बॉय, ठीक है, बॉय को हम कहते हैं गार्सो, मैस्कुलिन है तो यहाँ पर हमारा लग जाएगा स गार्सो. ठीक है. अगर मैं कहूँ दीज गर्ल्स, ठीक है, फील गर्ल्स, एस वाला गर्ल्स. ठीक है. सो यहाँ पर हमारा सी एस लग जाएगा क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है. ठीक है. आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई हो. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है l'infinitive après un autre verbe. चलो इसका सिंपली मीनिंग क्या होगा? देखो, इन्फिनेटिव आफ्टर अनदर वर्ब. देखो जैसे कि अगर मैं कहूँ इन्फिनेटिव, आप लोगों को पता है टू प्लस वर्ब इज नॉन एज द इन्फिनेटिव फॉर्म. ठीक है. सो देखो अगर मैं कहूँ आई एम, नहीं ये नहीं, हाँ चलो एग्जाम्पल लेते हैं. आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो टू द स्कूल. ठीक है. मैं ये एग्जाम्पल लेती हूँ. अब आप लोग कहोगे आई वॉन्ट को तो हम कहते हैं ज वर्ब, टू गो हम आले वर्ब को कॉन्जुगेट कर देंगे आई ज के साथ
टू द स्कूल को हम कहेंगे आले कॉल। बट नो, क्या होता है जब ऐसे हमारे पास दो वर्ब एक साथ दे रखी हो ना, तो दूसरी वर्ब हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में होती है, ठीक है। सो इन्फिनेटिव फॉर्म हम उसकी एज इट इज़ लिख देते हैं। अब मैं इसको कॉन्जुकेट नहीं करूँगी इस टू को, देखो सिंपली मैं लिख दूँगी I want, je veux, and alle verb as it is, je veux, alle कॉल। तो इन्फिनेटिव फॉर्म एज इट इज़ रही रहेगी यहाँ पर, इसको हम कॉन्जुकेट नहीं करते। दिस इज द थिंग विच इज टोल्ड इन हेयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है ला नेगासियो मीन्स द नेगेटिव, ठीक है। सो नेगेटिव कैसे हम फॉर्म करते हैं, सो जस्ट सिंपल एक रूल बताऊंगी बस आपको, आप बाकी तो रीड कर लेना। जो वर्ब होती है उसके आगे न लगा दो एंड वर्ब के बाद पा लगा दो, ठीक है। वर्ब के आगे न, वर्ब के बाद पा, तो ये हमारी बन जाएगी नेगेटिव। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो ये तो हो गई हमारी नेगेशन जो कि हमने ऑलरेडी कर रखी है। अगर मैं कहूँ इन्फिनेटिव है वर्ब के साथ, इन्फिनेटिव जैसे कि अभी अभी हमने एक पढ़ा था ज व आले आले कोल, ठीक है। अब आप लोग कहोगे मैम इसका कैसे होगा ज व आले आले कोल, न हम इसके आगे चलो वर्ब के आगे लगा देंगे। पा कहाँ पर लगेगा, जो पा होगा वो हमारा जो है वो के बाद ही लग जाएगा, क्योंकि ये जो है अनकॉन्जुकेटेड वर्ब है, तो इसका जो है नेगेशन हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिवर्ब impersonal मीन्स impersonal verbs। देर आर सर्टेन verbs लाइक neige, pleuvoir एंड falloir। ये हमारी तीन वर्ब है। neige मीन्स टू स्नो, pleuvoir मीन्स टू रेन एंड falloir मीन्स टू बी नेसेसरी, ठीक है। दे आर ओनली यूज्ड विद इल, के बस वो इल के साथ ही जो है कॉन्जुकेट होती हैं, उन वर्ब्स को हम बोलते हैं impersonal verbs, ठीक है। आखिरी टॉपिक हमारा आता है लेजाद वेब द क्वांटिटी मीन्स एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। चलो आसे द मीन्स इनफ, बोकू द मीन्स अ लॉट अ मैनी। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी दे आर गोना डिनोट द क्वांटिटी ओनली। सो कोम्बिया द हाउ मच हाउ मेनी, प्ल द मोर, मुआ द लेस विच इज यूज्ड इन कंपैरेटिव सेंटेंस, अप द मीन्स फ्यू अ लिटल, थ्रो द मीन्स टू मच टू मैनी, तो द मीन्स सो मच। सो इतना ही था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैंने कुछ फास्ट ही करवा दिया आप लोगों को वैसे आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एक बार रीड करके देखना, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो आस्क मी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।